Chapter 1 The Portrait of a Lady by Kushwant Singh from Class 11 Subject English Book Hornbill अध्याय एक महिला का चित्र My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 वर्षों से बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी, जितना समय मैं उन्हें जानता था. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि वह कभी युवा और सुंदर थीं और उनका एक पति भी था, लेकिन यह मानना कठिन था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा का चित्र ड्राइंग रूम में मंटेल पीस के ऊपर लटका हुआ था. He wore a big turban and loose fitting clothes. वह एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. His long, white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने की अधिकांश हिस्से को ढकती थी और वह कम से कम 100 साल के लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जो पत्नी या बच्चों के साथ होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसे लगते थे जैसे उनके पास केवल बहुत सारे पोते पोतियां हो सकते थे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. मेरी दादी का युवा और सुंदर होना यह विचार लगभग घृणास्पद था. She often told us of the games she used to play as a child. वह अक्सर हमें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वह उनके हिस्से पर काफ़ी बेतुका और अविश्वसनीय लगता था, और हम इसे उन भविष्यवक्ताओं की कथाओं की तरह मानते थे जो वह हमें सुनाया करती थीं. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थीं. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका चेहरा झुर्रियों का जाला था जो हर जगह से हर जगह फैली थी. No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम निश्चित थे कि वह हमेशा से वैसी ही थी जैसी हमने उन्हें जाना था. Old, so terribly old, that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. इतनी बूढ़ी, इतनी भयंकर बूढ़ी कि वह और बूढ़ी नहीं हो सकती थी और 20 वर्षों से एक ही उम्र में ठहर गई थी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह हमेशा खूबसूरत थीं. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. वह घर में बेदाग सफ़ेद कपड़ों में इधर उधर लड़खड़ाती रहती थी. एक हाथ उनकी कमर पर संतुलन बनाए रखने के लिए होता था और दूसरा हाथ उनकी माला के दानों को गिनने में लगा होता था. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके चांदी जैसे बाल उनके हल्के सिकुड़े चेहरे पर अनियमित रूप से बिखरे रहते थे और उनके होठ निरंतर मौन प्रार्थना में चलते रहते थे. Yes, she was beautiful. हाँ, वह खूबसूरत थी. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वह पहाड़ों में सर्दियों के दृश्य की तरह थी, शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तार जो शांति और संतोष से भरी हुई थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़कर शहर में रहने चले गए और हम हमेशा साथ रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it.
वह अपने सुबह की प्रार्थना को एक रस गान में कहती थीं, जबकि वह मुझे नहलाती और तैयार करती थीं, इस उम्मीद में कि मैं सुनूंगा और इसे याद कर लूंगा। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन कभी इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती लाती थी, जिसे वह पहले से धोकर पीले चौक से पुती होती थी, एक छोटी मिट्टी की स्याही दानी और एक लाल पेन। इन्हें एक बंडल में बांधकर मुझे देती थी। After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. मक्खन और शक्कर लगी मोटी, बासी रोटी के नाश्ते के बाद हम स्कूल जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वह अपने साथ कई बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थीं। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट taught us द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जबकि बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठकर समूह में वर्णमाला या प्रार्थना गाते थे, मेरी दादी अंदर बैठकर शास्त्र पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, हम एक साथ वापस घर चलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस समय गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमारा इंतजार करते थे। They followed us to our home, brawling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वे हमें घर तक पीछा करते थे और हम उन्हें रोटियां फेंकते थे तो वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। That was a turning point in our friendship. यह हमारी दोस्ती में एक मोड़ था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थीं। I used to go to an English school in a motor bus. मैं मोटर बस से एक अंग्रेजी स्कूल जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. सड़कों पर कोई कुत्ते नहीं थे और उन्होंने हमारे शहर के घर के आंगन में गौरैया को खाना खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब दादी ने। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम देखने लगे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक उन्होंने मुझे उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं वापस आता तो वह पूछती कि शिक्षक ने मुझे क्या सिखाया है। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. मैं उन्हें अंग्रेजी शब्द और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान की छोटी छोटी बातें बताता। गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, दुनिया का गोल होना आदि। दिस मेड हर अनहैप्पी। इससे उन्हें दुख होता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। वे मेरी पाठों में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। वह मेरी पाठों में मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी और इस बात से परेशान थी कि वहाँ भगवान और शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत की कक्षाएं दी जा रही हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इससे वह बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। उनके लिए संगीत का मतलब अश्लीलता था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। यह वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था और सज्जनों के लिए नहीं था। शी सेड नथिंग
बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी अस्वीकृति का संकेत थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डैट। इसके बाद वह मुझसे शायद ही कभी बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं विश्वविद्यालय में गया, मुझे अपना एक कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped. मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation. मेरी दादी ने अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. उन्होंने शायद ही कभी अपना चरखा छोड़कर किसी से बात की हो। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती, कताई करती और प्रार्थना करती। Only in afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर में वह थोड़ा आराम करती और गौरैया को खाना खिलाती। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती तो सैकड़ों छोटी चिड़ियां उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती, जो एक असली शोर मचाती थीं। Some came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ उनके पैरों पर बैठ जाती, कुछ उनके कंधों पर। Some even sat on her head. कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। She smiled but never shooed them away. वह मुस्कुराती लेकिन उन्हें कभी नहीं भगाती थीं। It used to be the happiest half hour of the day for her. यह उनके दिन का सबसे खुशहाल आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाने का फैसला किया, मुझे यकीन था कि मेरी दादी परेशान होंगी। I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा और उनकी उम्र में कुछ भी हो सकता था। But my grandmother could. लेकिन मेरी दादी जानती थी। She was not even sentimental. वह भावुक भी नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई, लेकिन उन्होंने ना तो बात की और ना ही कोई भावना दिखाई। Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. उनके होंठ प्रार्थना में हिलते रहे, उनका मन प्रार्थना में लगा रहा। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां माला के दानों को गिनने में व्यस्त थीं। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा और जब मैं गया, मैंने उस नमी के निशान को संजोया, जैसे कि यह हमारे बीच के शारीरिक संपर्क का आखिरी संकेत था। But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं था। After 5 years, I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद जब मैं घर लौटा तो वह स्टेशन पर मुझे लेने आई। She did not look a day older. वह एक दिन भी बड़ी नहीं लगी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. मेरे आगमन के पहले ही दिन उनके सबसे खुशहाल पल उनकी गौरैयों के साथ थे, जिन्हें वह अधिक देर तक और मजाकिया झिड़कियों के साथ खिलाती थीं। In the evening, a change came over her. शाम को उनमें एक बदलाव आया। She did not pray. उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लाई और गाने लगी। For several hours she thumbed the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. कई घंटों तक उन्होंने ढोल की ढीली त्वचा पर थाप दी और योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उन्हें रोकने के लिए मनाना पड़ा ताकि वह अधिक थक न जाएं। That was the first time since I had known her that she did not pray. यह पहली बार था जब मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए नहीं देखा था।
द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह पे बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। यह हल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि यह ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी ने अलग सोचा। शी टोल्ड अस डैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत निकट है। शी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उन्होंने कहा कि चूंकि जीवन के आखिरी अध्याय के समापन के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, इसलिए अब वह और समय हमसे बात करके बर्बाद नहीं करेंगी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोधों को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी प्रार्थना करते हुए और माला के दाने गिनते हुए। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर पाते, उनके होंठ हिलना बंद हो गए और माला उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे पर एक शांति की छाया फैल गई और हम समझ गए कि वह मर चुकी थीं। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसे कि प्रथा है उन्हें जमीन पर लिटा दिया और लाल कफन में ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के शोक के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. शाम को हम एक कच्ची स्ट्रेचर के साथ उनके कमरे में गए उन्हें शमशान में ले जाने के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूरज डूब रहा था और उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से भर रहा था। We stopped halfway in the courtyard. हम आधे रास्ते आंगन में रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. बरामदे और उनके कमरे में हर जगह जहाँ वह मृत और सख्त लाल कफन में लिपटी हुई थी, हजारों गौरैया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थीं। There was no chirping. कोई चहचहाहट नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हमें उन चिड़ियों पर दया आई और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई। She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, जैसे मेरी दादी करती थीं, फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread. गौरैयों ने रोटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हमने अपनी दादी का शव उठाया तो वे चुपचाप उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन सफाई कर्मी ने रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में झाड़ू से इकट्ठा किया। फ्रेंड्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीट. Friends, we will do question answers in a separate video. Till then, take care and respect your elders. Thank you for watching.